QEC अगर आप देखें, इनिशियली पहला अगर आप देखें क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंट्रोल, नंबर 2 एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन, नंबर 3 curriculum development, number 4 faculty development and trainings, number 5 student assessment and evaluation, 6 research promotion and facilitation, and finally continuous improvement and innovation. QEC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तमाम कामों को अचीव करने में, इन तमाम गोल्स को अचीव करने और सक्सेसफुली परफॉर्म करने में। ये आपको एक सर्कल मैंने बताया था, इससे आगे हम चलेंगे। यहाँ क्वालिटी अश्योरेंस इन एकेडमिक्स की हम बात कर रहे थे। ये आपसे जैसे मैंने डिस्कस किया हायर एजुकेशन में, इट इज अबाउट द डायनामिक्स which is the outcome of interaction among many factors, including inter alia, leadership, quality of faculty and students, infrastructure, facilitating assessment procedures and market force. अगर आप इनका विजन देखें तो विजन is just all about the quality and improvement of education. डिस्कशन हो गया, बीफ हमारा प्रोसेस अगर हम देखें, हम इनिशियली एकेडमिक प्लानिंग करते हैं, we move on to the academic activity for certain programs. ये आगे जाके मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है of certain you know institutes and organizations जिनके लिए HEC ने खुद से monitoring bodies बनाए हुए हैं. Academic program review, curriculum enhancement, and finally learning outcomes and assessment. Quality assurance agency के अगर goals हम यहाँ देखें, policy making and development of practical guidelines of quality assurance related to the higher degree programs, developing guidelines for establishment of quality enhancement cells and their monitoring and evaluation, capacity building to enhance the standards of quality assurance in higher education at national level, to monitor and regulate higher education institutions for implementation of policies to improve quality and standard of higher education in Pakistan. As far as their functions are concerned, developing practical guidelines and policies for establishing quality enhancement cells at public sector, universities and institutions as well, क्योंकि अब तो हमारे पास BS programs मौजूद हैं तमाम mostly जितने भी बड़े colleges हैं वहाँ पर, तो definitely institutes में भी, तमाम colleges में भी, और उनका purpose क्या है? We have to integrate quality assurance in the higher education system. QEC का काम है कि they monitor, evaluate capacity building of all quality enhancement cells. ये इनका major काम है जी. Capacity building of selected professional staff of quality enhancement cells to serve as master trainers after receiving training in quality to increase the levels of international compatibility through skills enhancement in the respective field. ये मैंने already आपको बताया कि QEC जब काम करती है तो QEC में कई एक टीम्स होती हैं और उन टीम्स में सबसे पहले ऊपर आपका डायरेक्टरेट सेट करना होता है। हमने ये अभी डिटेल में हम आगे देखेंगे भी, और उस डायरेक्टरेट के अंडर आपके पास जितने भी एनरोल्ड प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम की अपनी टीम होती है जिसे हम PT या प्रोग्राम टीम के नाम से जानते हैं, जिनका काम अपने प्रोग्राम को लेके तमाम डिटेल को गैदर करना और SAR में उसको एक कन्फाइंड शक्ल देकर प्रेजेंट करना है। SAR स्टैंड्स फॉर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था अभी कि SAR आपकी जो है वो रिपोर्ट होती है जो कि प्रेजेंट करते हैं हम टू आगे हमारा जो मजीद आपका जो असेसमेंट टीम होती है AT टीम को। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं उनमें आगे देखिए, हायरिंग द सर्विसेज ऑफ लोकल एज वेल एज फॉरेन एक्सपर्ट्स, having practical exposure of academic quality assurance for conducting trainings, workshops, seminar for capacity building of quality enhancement
quality assurance agency and quality enhancement cell staff. ये एक छोटा सा हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है कि हम किस तरह से काम करते हैं. You have your vision, you start working on it, you get the progress, and finally you attain your quality. Quality enhancement cells in higher education institutions. Quality assurance in education plays very important role with reference to ensuring the consistent delivery of high quality education and fostering continuous improvement in academic institutions. Quality Assurance Agency is committed to elevating the standard of education by implementing a comprehensive strategy across various areas. Objectives अगर हम इनके discuss करें तो develop and promote quality culture in the academia in Pakistan, leading towards sustainability in quality assurance and enhancement efforts at institutional level. Development of quality culture in universities and institutions affiliated with universities is an art of holistic approach to account for all aspects. Quality in terms of faculty, you need highly qualified faculty, you need research, improved research. यानी आपकी faculty के पास जब तक facilities available नहीं होंगी, they will not be able to perform quality research. Students, curriculum management, governance, accreditation, recognition of qualifications in specific and harmony with national needs and social impact in general. Establishment of quality enhancement cells. अब ये QECAC हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बार बार सुनते हैं QECAC. It refers to Quality Enhancement Cells in Affiliated Colleges. ये एक नई चीज़ है जी जिस पर रिसेंटली काम शुरू हुआ है. बहुत ज़्यादा एम्फोसिस अप हुआ है. काम तो बहुत पहले से चल रहा है लेकिन एम्फोसिस अप होने लगा है कि अफिलिएटेड कॉलेजेस में आप SARs जनरेट करें और उसको पूरे तौर से मॉनिटर करें कि हाउ योर प्रोग्राम इज वर्किंग. और यही मेजरली काम है QEC सेल्स का जो कि यूनिवर्सिटियां एनफोर्स कर रही हैं इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में कि उन्हें बनाया जाए. These cells serve as central units responsible for monitoring and enhancing the quality of education by developing and implementing quality assurance policies, procedures, practices. By instating QECs, institutions are better equipped to identify areas for improvement and implement measures to enhance the overall learning experience. This is very true. जब हम SAR अपनी बनाते हैं उस वक्त हमने तमाम अपनी वीकनेसेस भी लिखनी होती हैं डिपार्टमेंट की और साथ में अपने प्लस पॉइंट्स भी देने होते हैं. जब आप अपने वीकनेसेस को अपने हाथ से पेन डाउन करते हैं तो इट इज मोर बेटर टू रिकॉग्नाइज देम, टू अंडरस्टैंड देम एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस कि आखिर हम उन्हें किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, अगेन ये वही हिस्ट्री है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की. 2002 में HEC बनाई गई थी. 2005 में क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसीज एस्टेब्लिश की गई एंड इसी की जुरिस्डिक्शन में आगे जाकर स्पेशलाइज्ड बॉडी टू इंट्रोड्यूस एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिटी कल्चर इन हायर एजुकेशन. Establishment of QEC roots in the establishment of Quality Assurance Agency. ये already मैंने आपसे discuss की बात. PC1 में initially QECs was approved by DDWP. ये आप DDWP देख सकते हैं, Departmental Developmental Working Party, जो कि Planning Commission 1 के अंडर काम करती है. 2006 में they decided to establish QEC cells at the higher education institutions. उसके बाद ही ये सारा काम start हुआ है. Now, if we discuss the functions of quality enhancement cells, what they are responsible for, number one, promoting public confidence that the quality and standards of the award of degrees are enhanced and safeguarded. ये बड़ी important चीज है कि जब तक आपके जो public है, जो कंज्यूमर्स हैं, बेसिकली अगर हम लैंग्वेज में इस लैंग्वेज में बात करें कंज्यूमर्स के रेफरेंस में, तो कंज्यूमर को जब तक आप ये कॉन्फिडेंस नहीं देते कि आपकी डिग्री के कोई सेफगार्ड्स हैं, आपकी डिग्री की वैल्यू क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज वेल, तब तक आप उस प्रोग्राम को प्रमोट नहीं कर सकते, उसका सक्सेस नहीं आ सकता. सेकेंडली, रिव्यूइंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड लर्निंग इन ईच सब्जेक्ट एरिया.
reviewing of academic affiliations with other institutions in terms of effective management of standards and quality of programs. Here we are again talking about our affiliations. ये बड़ी important चीज है और इसी heading के under अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हैं QEC AC पे और उसका पर्पस यही है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके बिटवीन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जिनसे हमने अफिलिएशंस लिया है ताकि प्रोग्राम्स की क्वालिटी में कोई फर्क ना आने पाए. इफ यू आर हैविंग द डिग्री फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सेम क्वालिटी आपकी किसी भी अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हो. Defining clear and explicit standards as points of reference to the reviews to be carried out. It should also help the employees to know as to what they could expect from candidates. ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे outcomes क्या हैं. Next, developing qualification framework by setting out the attributes and abilities that can be expected from the holder of a qualification, BA, BSc, Masters. अब हम तो mostly colleges में we are only concerned about the BA and BSc honor programs. तो अगर हम बात करें इनके क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की, मैंने इससे पहले भी जब आपसे बात की थी तो मैंने आपको बताया कि न्यू अंडरग्रेड जो पॉलिसी आपकी आई है, एजुकेशन पॉलिसी UGP, तो अगर आप उसमें देखें तो उसमें हमारे पास टोटल 12 उन्होंने सिर्फ जनरल एजुकेशन के प्रोग्राम्स दे दिए. ये 12 जनरल एजुकेशन के प्रोग्राम्स दे कवर अ रेंज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स के अलावा हैं एंड दे विल ग्रेटली हेल्प एवरी स्टूडेंट इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. तो ये फ्रेमवर्क्स का बेसिकली काम जो है वो QEC और QAA क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी का काम है जिन्होंने ये सब प्रोवाइड करना है, जिन्होंने ये सब प्लान करना है और हमारे पास भेजना है फॉर इम्प्लीमेंटेशंस. Developing program specifications. These are standards, set information, clarifying that knowledge, understanding, skills, and other attributes a student will have developed on successfully completing a specific degree. Again, SAR ही को हम दोबारा डिस्कस करेंगे. SAR में जब हम बनाते हैं SAR, वहां आपने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देने होते हैं डिपार्टमेंट के एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू डेवलपिंग द स्पेसिफिकेशंस. एवरीबडी नोज बेटर अबाउट देयर ओन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो उससे रिलेटेड तमाम आपके पास गाइडलाइंस HEC भी प्रोवाइड करता है और उन्हीं गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाना QEC का काम है. डेवलपिंग क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन to affirm that the quality of provision and the standards of awards are being maintained, and to foster curriculum, subject and staff development together with research and other scholarly activities. Again, SAR का ही हम बात करेंगे. Basically हम ज्यादा focus SAR पे इसलिए करते हैं, self assessment report. SAR stands for self-assessment report. So when you assess your own, improvements, इंटरनल असेसमेंट जब आप करते हैं अपने प्रोग्राम की, तो आपके पास अपनी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी आती हैं, बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स भी सामने आ जाती हैं एंड इट ऑल हेल्प यू इन अश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ योर प्रोग्राम. Ensuring that the university's quality assurance procedures are designed to fit in with the arrangements in place nationally for maintaining and improving the quality of higher education. हमें ये पता है कि universities की जो facilities हैं वो as compared to colleges बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन they have multiple programs. वो सिवाय BS के MPhil और PhD भी करवा रहे हैं जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज होती हैं. तो अगर BS प्रोग्राम के रेफरेंस में वी हैव बेटर कम्युनिकेशन विद यूनिवर्सिटीज, विद एफिलिएशन बॉडीज, तो हम बेहतर तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर पाएंगे. Other than those, QEC is also responsible to develop procedures such as approval of new programs. Approval of new programs के अलावा student feedback, employer feedback, quality assurance of masters, MPhil, PhD programs, subject review, institutional assessment, program specifications,
क्वालिटी फ्रेमवर्क। ये तमाम चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम SAR से रिलेटेड आपसे एनेक्शर्स की बात करेंगे, जहां पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। उन तमाम फॉर्म्स में हमने ये चीजें डिस्कस करनी होती हैं और कवर करनी होती हैं। क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, then which programs you're offering, then suitable faculty and staff, monitoring and support, institutional development, finally. Components को अगर हम डिस्कस करें QEC के, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के, तो हमारे पास सबसे पहले यहां आप देख सकते हैं देयर आर सर्टेन इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म्स। कंटिन्यूअसली SAR बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस को। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस है जी। सेल्फ एनालिसिस के बाद यू प्रोवाइड क्वालिटी प्लान, देन यू मॉनिटर योर अचीवमेंट्स एंड फाइनली यू इवैल्यूएट देम। मूविंग ऑन, external quality assurance. External quality assurance includes benchmarking, audit, assessment and review. आपने जो भी अपना काम SAR में सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में प्रोड्यूस किया है, वो सारा का सारा सबमिट होता है AT है जी आपकी असेसमेंट टीम, जो कि आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग नहीं होते, ये QEC के तैनात करदा लोग होते हैं जिनका काम है एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस को अश्योर करना। फाइनली यू हैव एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन या एक्रेडिटेशन में अकाउंटेबिलिटी, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये दोनों चीजें आपकी इसका मेजर एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आपका सर्टिफिकेट एक्रेडिटेशन जो है उसे आप रिन्यू कर पाते हैं। ये हमारे पास इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस की डिटेल है। अगर ये फ्रेमवर्क आप देख सकें, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, लर्निंग, टीचिंग एंड सर्विस। लर्निंग, टीचिंग एंड सर्विस में अगर हम देखें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, आपके पास डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, वो कौन कौन से आप अप्लाई कर रहे हैं और उनमें से कौन से बेनिफिशियल हैं। असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, evaluation of staff involved in the implementation of educational programs. Then you have research. Without research, I don't think so कि हमारा कोई भी प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जब तक आप न्यू ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, आप उस पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, आप कभी भी उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं और उसमें सक्सेस नहीं ले सकते। Assessment of research activities, academic and scientific staff, scientific productivity. Scientific productivity basically refers to our publications. हमें हमारे यहाँ पर कॉलेज सेक्टर में पब्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा लेवरेज देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसको बिल्कुल फोकस नहीं करते। पब्लिकेशंस, रिसर्च पब्लिकेशन जब आप निकालते हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, उसके बाद ही आप एक रिसर्च पब्लिकेशन निकाल सकते हैं। एंड फॉर रिसर्च इंप्रूवमेंट, फॉर सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव मैनेजमेंट प्रोसेस। विदाउट मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्टाफ के बगैर तो आप कभी काम कर ही नहीं सकते। assess the effectiveness of organizational management processes. Again, processing of awards, plagiarism verification using Turnitin, approval, monitoring, and periodic review of programs. This periodic review, again, it is SAR. We are again talking about the self-assessment. Internal assessment is all about SAR. ये तमाम parameters हैं जिन्हें हमने SAR में cover करना होता है। External quality assurance की अगर हम बात करें, it refers to the actions of an external body. External body जो मैंने अभी आपको AT बताया, AT, A for assessment, T for team. Assessment team जो कि काम करेगी, which may be quality assurance agency or another body different from the institution, which assesses its operation or that of its program in order to determine whether it is meeting the standard that have been agreed upon. इनका काम है जी इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को रिव्यू करना, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को रिव्यू करना, MS MPhil PhD रिव्यू करना, रैंकिंग ऑफ
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रैंकिंग एंड नेशनल रैंकिंग, ये हमें पता है कि ये वेबसाइट्स हैं प्रॉपर जो इस पे काम करती हैं और ये रैंकिंग्स इशू करती हैं. देन फाइनली एक्रेडिटेशन बाय रिस्पेक्टिव काउंसिल्स. Moving on, this is again a framework which is representing the internal assurance, quality assurance and external quality assurance mechanism. Internal में अगर यहाँ आप focus कर सकें, program self assessment reports, I have already explained them, आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे. Study reports of each degree awarding program, ये separate बनती हैं. Feedback evaluation, मॉनिटरिंग ऑफ डिग्री अवार्डिंग प्रोग्राम. अब ये 3 तरह से होता है. स्टूडेंट टीचर इवैल्यूएशन है, टीचर कोर्स इवैल्यूएशन है एंड स्टूडेंट कोर्स इवैल्यूएशन है. स्टूडेंट टीचर इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस कि योर स्टूडेंट्स have the complete authority to tell us how you are teaching and how your all the resources were communicated with them. Teacher course evaluation and student course evaluation about the contents of your courses. Now here you can see the external quality assurance mechanism. External evaluation by HEC Pakistan in the form of institutional performance evaluation. Again ये वही चीजें हैं जो पीछे अभी हम देख कर आए हैं. Review of MS, MPhil, PhD और equivalent programs to ensure quality of postgraduate programs, and finally again accreditation. अभी councils को हम discuss करते हैं, इनकी different councils हैं. यहाँ आप QECAC ये हमारा major focus है क्योंकि this is purely concerned with affiliated colleges. One of the key responsibility of QEC is to review academic affiliations with other institutions in terms of effective management of standards and quality of programs. Mandatory to establish QEC in affiliated colleges and follow the same guidelines in terms of accreditation, program self-assessment, institutional performance evaluation provided by QAA. ताकि हमारा प्रोग्राम, अभी मैंने ऑलरेडी जैसे आपको कहा कि ताकि अफिलिएटेड प्रोग्राम्स, अफिलिएटेड कॉलेजेस में हम जो भी पढ़ा रहे हैं प्रोग्राम्स वो यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह स्टैंडर्ड्स में कम ना हो. सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट SAR is an important tool for academic quality assurance and provides feedback for faculty and administration to initiate action plans for improvement. Objective of SAR self assessment exercise आखिर हम करते क्यों हैं? Number 1, we need to maintain and continuously enhance student learning. Verify that the existing programs meet their objectives and institutional goals. Provide feedback for quality assurance of academic programs. Prepare the academic program for review by discipline councils. Accreditation again. SAR quality criteria. Total आपके पास SAR के 8 quality criteria हैं जिन पर हम काम करते हैं. Number 1, program mission objectives and outcomes. Without this, we cannot have a clear picture what we are trying to convey to the students of certain specific discipline. Number 2, curriculum design and organization. Number 3, laboratories and computing facilities. Number 4, student support and guidance. 5, process control. 6, faculty. 7, institutional facilities. 8, institutional support. ये तमाम वो क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस पर SAR को डिजाइन किया जाता है और इन्हीं को लेकर हम आगे बात करते हैं. Every program undergoes self-assessment every 2-year cycle. Self-assessment is based on several criteria और उन criteria को भी हमने डिस्कस किया. SAR performing
there is a list of performing 10 टोटल परफॉर्मा हैं जो हमने इवेलुएट करवाने होते हैं, कंप्लीट करवाने होते हैं, जिनमें कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड है, फैकल्टी है, देन हमारे अपने जो एम्प्लॉयर है, दे आर ऑल इंक्लूडेड. नंबर 1 हमारे पास है जी स्टूडेंट कोर्स इवैल्यूएशन क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन includes the evaluation of course contents कि वो इनफ थे, नहीं थे, किस तरह के थे. अगर आप चाहें तो हमने अभी रिसेंटली इन तमाम क्वेश्चनर्स के गूगल फॉर्म्स पर कन्वर्ट किया है हमने, रादर देन हार्ड कॉपीज. वो मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ. तो ये गूगल फॉर्म से फायदा ये होता है कि आपके पास डेटा बड़ा कंसाइज और बड़ा डिटेल में एक ही जगह पर आ जाता है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट कंपाइल करना आसान हो जाता है. नंबर 2 फैकल्टी कोर्स रिव्यू रिपोर्ट. ये अभी जो हम पीछे बात करके आए हैं कोर्स रिव्यूज के बारे में कि हाउ स्टूडेंट्स विल इवैल्यूएटेड, हाउ फैकल्टी विल इवैल्यूएट. ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे. Now, graduating student survey is basically about the students who are in the last semesters. Research student progress review form, faculty survey. Faculty survey के अंदर आपके पास faculty से related तमाम details आ जाती हैं. फिर उसके बाद आपके पास सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम्स. ये हमारा पार्ट नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली है. एल्यूमिनाई सर्वे, एम्प्लॉयर सर्वे, फैकल्टी रेज्यूमे, टीचर्स इवैल्यूएशन फॉर्म. इनमें जो परफॉर्मा 1 एंड परफॉर्मा 10 है, ये आपके अंडर जो आपके अभी बीएस प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं, ये तो उन्होंने मस्ट फिल करने होते हैं. बाकी मैंने अभी आपको बताया जो आपके पास परफॉर्मा 2 है फैकल्टी कोर्स एंड परफॉर्मा 9, ये दोनों फैकल्टी ने फिल करने हैं. फैकल्टी सर्वे ये भी फैकल्टी का है. एम्प्लॉयर ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है. बाकी जो परफॉर्मास है एलुमनाई का और ग्रेजुएटिंग का, ये फाइनल ईयर और एलुमनाई आपके जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं. दिस इज द साइकिल ऑफ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट. यहाँ आप देखें, अगर इनिशिएट करते हैं हम, QEC initiates self-assessment through the dean 1 semester prior to the assessment. Department forms the PT. I already told you about PT. This is the program team. Program team के 3 members होते हैं, which are all from the program for which the SAR is being generated. Program team that will be responsible for preparing SAR, which moves on to QEC reviews the documentation within 1 month. वो आप SAR जैसे ही सबमिट करवाएंगे उसका रिव्यू आ जाएगा. अगर SAR कंप्लीट है तो आप आगे चलेंगे, वरना फिर हम पीछे वापस डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएंगे. If the SAR is complete, it is forwarded to the head of the institution who will form AT. Now here comes the AT. AT stands for assessment team. Assessment team in consultation with the concerned dean based on the recommendation of the QEC. AT के भी 3 members होते हैं, minimum 2 members हो सकते हैं. इनमें कंपल्शन है कि एक मेंबर आपका लाजमी तौर से इंस्टीट्यूशन से बाहर का हो, फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट जहां आप जिस प्रोग्राम के लिए अपनी SAR जनरेट कर रहे हैं वो प्रोग्राम ऑफर हुआ हुआ है. तो ये जो पहला मेंबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उस वक्त इसके पॉइंट्स होते हैं. अगर आपका असेसमेंट टीम का एक मेंबर एटलीस्ट नॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट है. बाकी 2 मेंबर्स ये भी एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों मेंबर्स आपके इंस्टीट्यूट से ना हो, लेकिन प्रोग्राम दूसरा होना जरूरी है. दे कैन बी आइदर योर डीन ऑफ साइंसेज, आपका जो QEC का डायरेक्टर है वो भी हो सकता है, एनी मेंबर बट नॉट फ्रॉम द प्रोग्राम. ठीक है जी. QEC प्लान्स एंड फिक्सेस AT विजिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. असेसमेंट टीम आपकी जिसमें एक एक्सटर्नल मेंबर, एक्सटर्नल मींस नॉट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, बाकी के 2 भी एक्सटर्नल हैं बट दे आर एक्सटर्नल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है. आपकी टीम विजिट करती है. द AT कंडक्ट्स असेसमेंट एंड प्रेजेंट्स इट्स फाइंडिंग्स टू QEC, डीन, PT, प्रोग्राम टीम एंड
डिपार्टमेंटल फैकल्टी। अब इनका तरीका ये है कि इनके पास एक कंप्लीट इवैल्यूएशन रिपोर्ट मौजूद होती है। उस इवैल्यूएशन रिपोर्ट में आप ही के जो गोल्स हैं, जो अभी हमने ऊपर 8 डिफरेंट रेफरेंसेस में बात की थी, ये मैं आपको वापस लेके चलती हूँ। हियर क्वालिटी क्राइटेरिया, ये इन्हीं 8 क्वालिटी क्राइटेरिया की बेस पर इनके क्वेश्चनर बने हुए होते हैं और उस क्वेश्चनर में आपने मार्किंग करनी है एज पर SAR। वापस आते हैं हम इधर। अच्छा जी, the AT conducts assessment and presents it. QEC submits an executive summary to the VC, rector या आपका जो प्रिंसिपल है उन्हें। डिपार्टमेंट prepares implementation plan as in A2, वो हम आगे देखते हैं। Then again follow up of the implementation plan by QEC। जब आपका ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया है जिसमें आपने तमाम अपने काम परफॉर्म कर लिए, अब आपके पास प्लान आ गया है जी कि हमारे ये आपके ड्रॉबैक्स हैं जिनको आपने कवर करना है। अगेन उसके लिए आप उनके ऊपर काम करेंगे, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और जब आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है देन यू हैव द सेकंड साइकिल ऑफ SAR अगेन। ठीक है, हमने ऑलरेडी कहा कि SAR का साइकिल 2 साल पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। पहला साल आपने आइडेंटिफिकेशन की है कि आपके ड्रॉबैक्स कहाँ हैं और आप उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरे साल में उन्हीं ड्रॉबैक्स को आपने किस हद तक इंप्रूव किया, अपने प्लान्स को कैसे इंप्लीमेंट किया और उस इंप्लीमेंटेशन की बेस पे आप सेकेंड साइकिल ऑफ SAR जनरेट करते हैं। मूविंग ऑन, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये अभी HEC का काम है। ये systematically implementing 5-year 2002 to 7 agenda for reforms outlined in the HEC medium term development framework, MTDF हम इसे कहते हैं। Key components identified in MTDF are access, quality and relevance। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिस इज देयर मोटो कि आपकी एक्सेस किस हद तक है, क्वालिटी एंड फाइनली दी रेलेवेंस। Institutional performance evaluation के लिए you have to improve the performance of HEI, higher education institutions. HEC has started with primary step of outlining the performance evaluation standards for the HEIs to be used for purpose. A total of 11 standards are defined in a document and all 11 standards are equally important to be met by HEIs to achieve the desired certification to quality provision in higher education international visibility. And a significant place, visibility and significant place in the regional and international ranking of HEIs. It is mandatory for every HEI to prepare the university portfolio report for institutional performance evaluation. ठीक है जी। अच्छा जी, इससे आगे अगर हम देखें स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अभी जो पीछे हमने 11 स्टैंडर्ड्स की बात की। अगेन जनाब, नंबर 1 मिशन स्टेटमेंट एंड गोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। नंबर 3 organization and governance. Number 4 integrity. Number 5 faculty. Number 6 students. 7 institutional resources. 8 academic program and curricula. Number 9 public disclosure and transparency. Number 10 assessment and quality assurance. And finally student support service. यूनिवर्सिटी डाटा फॉर पोर्टफोलियो, यहां आप देख सकते हैं, उसको हम इस तरह से इकट्ठा करते हैं। फैकल्टी और डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट एंड फैकल्टी रेशियो, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दी SARs. Total enrollment by academic program, by department, number of applications and number of students enrolled, academic program wise list, retention rate, first to second year, what is the retention rate, second to third, third to fourth, and finally आपके last year में कितना retention रहता है, department wise, designation wise, number of full time faculty,
number of part-time faculty, on contract faculty, division, whatever आप faculty को किस तरह manage कर रहे हैं, everything. List of average salary. Designation wise आपने list of average salary भी देना होता है, tenure track पे हैं, और उसके हिसाब से हमारा तो क्योंकि college cadre है, तो college cadre में तो हमें पता है कि सब कुछ HED का काम है मैनेज करना. Total amount of financial aid given to the students from institutional funds. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते, उन्हें जरूरत होती है इसकी, तो हमेशा हर इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े स्केल पर स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं. एंडोमेंट असेट्स पर स्टूडेंट, total expense per student, educational and general expenses divided by number of full-time equivalent students. Finally, आपके पास है detail of credit hours for each academic program offered. ये तमाम काम UPR, University Portfolio Report, जो कि यूनिवर्सिटीज की तरफ से प्रिपेयर होती है, उसमें जाते हैं. आगे अगर आप ये देखें, रिवाइज क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ QEC, यहाँ हम नंबर वाइज चलेंगे. अब हम परसेंटेज की बात करेंगे, नंबर्स की वेटेज की बात करेंगे कि आखिर हम किस तरह से आगे उसे डिफाइन करते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं QEC एक्टिविटी के हिसाब से वेटेज हमने दिया हुआ है मार्क्स के हिसाब से. देयर इज अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स. सबसे पहली चीज है आपकी प्रोग्रेस अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, IPE, जो अभी आप पीछे करके आए हैं. 16 मार्क्स टोटल हैं इसके, आगे इसको डिटेल में भी करते हैं. Progress against program self-assessment, SARs 16 marks. Accreditation अगर आपने करवाई हुई है जिन प्रोग्राम्स की जरूरी है 14 marks. PhD program review and MS MPhil ये यूनिवर्सिटीज के लिए है 18 marks. Functioning of QEC secretariat 31 marks, क्योंकि सारा काम इम्प्लीमेंट करवाना काम ही इनका है. And then implementation of HEC policies and criteria 5 marks. It all makes 100 in total. यहां अगर आप देखें रिवाइज क्राइटेरिया के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं. नंबर 1 यहां पे अगर आप देखें, ये देयर 1.1 यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड अपडेटेड ऑन ईयरली बेसिस. मार्क्स है जी इसके 6. दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है 1.2 में अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, IPE. ये सारी चीजें अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं. अभी उनकी वेटेज के हिसाब से रिपोर्ट जब फाइनल प्रिपेयर होनी है उसको कैसे प्रेजेंट होना है, ये वो सारी बात है. वो भी 6 मार्क्स है. उसमें आप नीचे देख सकते हैं क्या क्या है. अगर आपने IPE प्रिपेयर की है तो स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट. In case HEC not evaluated, marks will be accorded to self IPE. जो आपने ऊपर IPE के जो मार्क्स हैं वही आपके यहाँ पर सेल्फ IPE के हिसाब से प्लेस कर दिए जाएंगे. Institutional performance evaluation, self evaluation by DAI in same fiscal year. Yes or no? If yes, 4 marks है. अगर आपने किया है काम, if all evaluator are internal members, तो उसके नंबर कट जाते हैं. अगर एटलीस्ट आपका एक एक्सटर्नल मेंबर है, जो ऑलरेडी मैंने आपको 80 में बताया, अभी जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी असेसमेंट टीम है उसमें 3 मेंबर्स हैं, जिनमें से एक लाजमी तौर से एक्सटर्नल होना चाहिए. ये है जी उसके मार्क्स यहां पर लगने. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर्ड अगेंस्ट IPE रिपोर्ट, action taken against IPE report. If external IPE was conducted the report should be addressed and will also be counted in assigning marks to action taken. ये है जी नंबर 2, प्रोग्रेस अगेंस्ट प्रोग्राम सेल्फ असेसमेंट, SAR के टोटल 16 नंबर होते हैं, 16 मार्क्स, और वो भी डिवाइडेड है. टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम टीम्स फॉर्म्ड 1 mark. टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट टीम्स फॉर्म, अगर तमाम प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई किए हुए हैं, आपने बनाई हुई हैं अपनी टीमें, तो उसके मार्क्स है. टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच एग्जीक्यूटिव समरी प्रिपेयर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. SAR के एंड पर आपने एग्जीक्यूटिव समरी देनी होती है जिसमें यू सम अप योर कंप्लीट वर्क देयर. 2 नंबर है जी उसके. टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर्ड 4 marks. Total number of programs in which corrective actions have been taken.
ये जो वेटेज है, ये जो मार्क्स हैं, ये सारे के सारे 2 ईयर प्लान के बाद होते हैं। हमने ऑलरेडी पीछे बात की कि 2 साइकिल्स हैं। साइकिल 1 में आप अपनी शॉर्टकमिंग्स बताते हैं एंड यू प्रिपेयर योर प्रोग्राम्स। साइकिल 2 में आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को किस तरह से अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करके ओवरकम कर पाए हैं, ये मार्क्स उसकी बेसिस पर है। ऑनलाइन फीडबैक सर्वे conducted for each program. In all, they make 16. Accreditation की बात करें, वेटेज 14 है जी इसका। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड, जो जिनको जरूरत है accreditation की, it is mandatory for higher education institutions to ensure accreditation of certain academic programs where applicable. ये अभी मैं आपको next slide में दिखाती हूँ। Total number of programs falling under the purview of accreditation councils. Total number of programs in which executive summary prepared, total number of programs accredited council-wise, total number of programs that are in process of accreditation, NOCs, green signal, council-wise program details, total number of not accredited programs, council-wise program details. अब accreditation हमें किन किन की चाहिए होती है? यहाँ अगर आप देखें लेफ्ट पर आपके पास जो लिस्ट है, ये आपकी एग्जिस्टिंग एक्रेडिटेशन काउंसिल्स, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, एंड फाइनली एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये तमाम वो काउंसिल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। नाउ बाय HEC there are certain councils which are made. National Accreditation Council for Teachers Education, National Agricultural Education Accreditation Council, National Computing Education Accreditation Council, National Business Education Accreditation Council, नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल। इनके अंडर जो पहली काउंसिल है NACTE, नेक्टी बेसिकली जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, BS एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये उनको मॉनिटर करते हैं। दूसरा नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रेडिटेशन, BS एग्रीकल्चर जिन इंस्टीट्यूट्स में ऑफर हुआ है उनके लिए जरूरी है कि वो इस काउंसिल से एक्रेडिटेशन लिया हुआ हो, अफिलिएटेड हो। देन कंप्यूटिंग एजुकेशन, क्या हम उसे कहते हैं, CS के प्रोग्राम्स के लिए। बिजनेस एजुकेशन BBA और उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल, इसमें आपके पास टेक्निकल स्टडीज जितने भी आ जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम काउंट करते हैं। रिवाइज क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ QEC नंबर 4, ये MS MPhil से रिलेटेड है, 18 वेटेज है। ये हमारे कॉलेज सेक्टर में नहीं है, ये MPhil और PhD जहां ऑफर हो रहा है ये वहां के लिए है। अच्छा जी, ये उनके लिए उनके डिफरेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप यहाँ देख सकें, लेकिन क्योंकि ये QEC AC से ज्यादा रिलेट नहीं करता, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये डिफरेंट क्राइटेरिया उन्होंने दिए हुए हैं, ये यूनिवर्सिटियां प्रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट नंबर 5, QEC सेक्रेटेरिएट फंक्शनिंग। टोटल उसका जनाब वेटेज है 31। अब इसमें अगर हम देखें सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। फंक्शनिंग ऑफ QEC सेक्रेटेरिएट अगर है तो 5 मार्क्स आउट ऑफ 5 आपने स्कोरिंग करनी होती है। बजट एलोकेशन फॉर QEC सेक्रेटेरिएट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, membership of international QA bodies obtained by QEC, membership of QEC in all statutory bodies 4 marks, awareness seminars, conferences, workshops on QA 2 marks, and finally contributions and participation in academic quality enhancement, quality assurance activities 4 marks. They all collectively make 31 marks. Now we have the final criterion, implementation of HEC quality assurance policies and criteria. 31 weightage, नहीं इसका weightage 31 नहीं है, 5 है total. Plagiarism policy, अगर आप plagiarism apply करते हैं, faculty appointment criteria, and finally minimum admission criteria of MS MPhil, ये भी हमारा नहीं है, ये universities के लिए applicable है.
टारगेट्स फॉर क्यूएसी फॉर करंट असेसमेंट ईयर। टारगेट्स हमारे क्या हैं जी? वी नीड टू प्रिपेयर एक्टिविटी कैलेंडर जुलाई टू जून, कीपिंग इन व्यू ऑल द रिक्वायरमेंट्स, targets set for yearly progress report and submitted to the Quality Assurance Agency, HEC, after its approval from institutional head. क्योंकि ये पहला आपका Excuse me, ma'am. जो साइकिल 1 एंड साइकिल 2 है उसमें है। जी सर। क्वेश्चन मैम, आपको इन्फॉर्म करना था कि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, लेक्चर खत्म जी होने सर, खत्म हो गया। ओके मैम। ये हमारा एंड हो गया जी। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, क्वेश्चंस और आंसर्स। रियाज मोहम्मद, आपका माइक मैंने अलाउ किया, मैम से क्वेश्चन कर लें। जी सर बोलिए। तो माइक अनम्यूट करें, मैम से क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम, जी रियाज मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ, जी सर। हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट को एजुकेशन कॉलेज लाहौर। जी सर। अच्छा मोहतरमा, मैं आपका लेक्चर माशाल्लाह अच्छा था। जी सर। बहुत सी टर्म्स को तो छोड़ दें, सिर्फ क्वालिटी पर आ जाएं। क्वालिटी बहुत जी चीजें सर। डिमांड करती है, क्वालिटी हमसे बहुत सी चीजें डिमांड करती है। जी। पहली बात तो ये है कि एचईसी को एक क्लियर कट पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी जो है ना, जी वो सबके लिए उसमें यूनिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अच्छा जी। बाद जैसे बीएस प्रोग्राम है, बीएस के बाद एमएस है या एमफिल है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, जी सर। डीएससी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है ना, एक पूरा पैकेज जो है ना, वो हमारे सामने रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जितनी कौंसल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जी जी उनमें भी बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जी बिल्कुल अच्छा, अग्रीड। मैं तजावीज तो बहुत सी देना चाहता हूं, लेकिन एक तजवीज को मैं फोकस करूंगा। जी वो सर। इस हवाले से है कि सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स हैं जी और साथ साथ उनके असातिज़ा हैं, प्रोफेसर। बिल्कुल। अच्छा, इनसे जो है ना, इनसे ना मुशावरत की जाती है, और ना ही होना तो ये चाहिए कि पूरा सिस्टम इनके गिर्द तवाफ हाँ जी। करे, लेकिन पॉलिसी मेकिंग बदकिस्मती में से। टीचर्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक जी। है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैं पहला लफ्ज पकड़ रहा हूं आपका, क्वालिटी। जी सर। क्वालिटी उस वक्त आती है जब यूनिफॉर्मिटी और यूनिफिकेशन हो। उसके बिल्कुल लिए सही। एक चीज होती है एकेडमिक कैलेंडर, फिर होता है हम्म। एकेडमिक सेशन, जी उसके बाद होता है सेमेस्टर्स। जी पंजाब जो है वो जियोग्राफिकली एक ऐसा प्रोविंस है कि जी सर। उसमें हम एट द सेम टाइम एक ही एकेडमिक सेशन चला सकते हैं, लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जी वो जी अलग अलग तरीके से एकेडमिक सेशन को चला रही हैं, और सही। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हल अगर कर दिया जाए तो बाकी प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते चले जाएंगे। वो जी ये है मेरी तरफ से तजवीज़ कि एक जो असेसमेंट और इवेलुएशन का मामला है ना, वो जी सर। यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस इनका सेम होना चाहिए। सही। स्टैंडर्ड सेम नहीं है। यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स की असेसमेंट किसी और तरीके से कर रही हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस की असेसमेंट किसी और तरीके से हो रही है। अगर मैं इस बात को सादा अल्फाज में कहूँ तो वो जी ये है कि सेमेस्टर की कंप्लीशन के बाद जो जी एक एग्जाम होगा, वो जी एग्जाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एक जैसे कोर्स ऑफ स्टडी के तहत एक जैसा एग्जाम दें, तो फिर क्वालिटी कायम की जा सकती है। और बाकी सर। जितनी भी बातें हैं वो जी सारी की सारी, ये जो मैंने बात की है ये प्राइमरी लेवल की है, बाकी सारी सेकेंडरी लेवल की बातें, बाकी स्ट्रीम लाइन होती चली जाएंगी जी अगर ये जी पहला स्टेप उठा लिया जाए कि एकेडमिक सेशन हमारा सेम हो,
जो सेमेस्टर ड्यूरेशन है वो सेम हो, असेसमेंट और इवेल्युएशन सेम हो, तो आप देखेंगे कि बहुत से मामला खुद ब खुद हल होंगे जी। जो पहला लेक्चर था चेयरमैन साहब का, मैं बहुत जी। सी बातें उन्हें करना चाह रहा था, बहुत सी तजावीज देना चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरी बारी नहीं आ सकी। तो मैं आपके तवज्जुह से ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। जी मैम, टाइम कंप्लीट हो गया मैम।